with our second in the series of child growth and development. Today we will be discussing methods of child study, biographical case study, observation, rating scales, clinical investigations, experiment, longitudinal studies, and also ways of interviewing. We have two very special people with us today, Dr. Nandita Chowdhury, Reader, Lady Irwin College, University of Delhi, Department of Human Development and Childhood Studies. She's been in the field from 1978, initially as an individual researcher, and she joined Lady Irwin College in 1982. So as you can see, she is very well versed in her subject, and we invite you. Thank you, Nandita, for joining us, and we really appreciate your college's effort in helping us out in bringing the best faculty on child development to our viewers across the country. She is supported here by Ms. Deepa Gupta, MSc in Child Development, Research Scholar, Lady Irwin College. They are currently doing a research study in collaboration with the University of Osnabrück in Germany, where they are looking at a cross-cultural project which bring intersections of child development, parenting and culture. That is, the cultural differences between the two countries on how children in different cultures are brought up, how they develop and how they are parented. So I will hand you over to the very able Dr. Nandita Chowdhury, who will be taking you through the next 2 hours of this presentation on the subjects of method of child study. Nandita. Namaskar. Thank you, Aloka ji, for having us here. For us as well, it is a privilege and an honor to be here, where we can bring some of the learning that we have had over the last so many years to different people working with children in different parts of the country. So it is a great honor, and thank you for inviting us. I will be speaking today about methods of studying children. What are the different ways we have to study children? Because we need to get to know them better, we have to study them scientifically, and in order to do so, we have to follow certain procedures. कुछ एग्जाम्पल्स देंगे हम कि कैसे प्रोसीजर्स होते हैं, क्या हमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या इक्विपमेंट चाहिए होती है हमको बच्चों की स्टडी करते टाइम. And we will take actual examples of research projects where we have worked with children in order for you to understand better. I'd like you to see the presentation. The title of my presentation is Methods of Studying Children, and along with me today, Deepa Gupta will be facilitating this afternoon's lecture. And I'm hoping that I can have questions through the afternoon, क्योंकि जब questions बीच में आते रहते हैं तो हम भी interested रहते हैं बातों में. तो please, जब भी आपके मन में कोई भी प्रश्न आए, please feel free to ask, because it is only when we have raised questions in your minds that the purpose of being here is fulfilled. I'd like to first talk about human development as a science. आप human development कहें या child development कहें, ये एक scientific subject होता है. Psychology तो हमारी universities में एक art subject कहलाई जाती है, पर psychology अपने it qualifies as a science because it's a scientific study of individuals. Human development or child development is a subject which is a scientific study of human beings, the changes that we go through from birth on to maturity to middle age to old age. These changes are important for us to study in order to get to know people better. कई बार problems आ जाते हैं. एक बच्चा 11 महीने पे चलता है, एक बच्चा 12 महीने पे चलता है, एक बच्चा 2 साल तक नहीं चल पाता है. क्या वो किसी बीमारी की वजह से है? Is there some other reason why there is this delay in a child's walking, in the attainment of the milestones? So it is extremely important for us to realize that the human and social sciences
are scientific study of individuals and groups. अब मैंने groups क्यों कहा? क्या हम सिर्फ इंडिविजुअल्स को पढ़ते हैं साइकोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट हम करते हैं? नहीं, ग्रुप्स को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वी नीड टू नो, इट इज़ ओनली बाय स्टडिंग ग्रुप्स दैट वी कैन अंडरस्टैंड दैट देर इज़ अ वेरिएशन. नॉर्मल रेंज में भी बच्चों के चलने में भी हम वेरिएशन देखते हैं. मेरी भाई की बेटी, मुझे याद है, 8 महीने पे चलने लग गई थी. My son did not walk till he was 12.5 months of age. क्या ये एक नॉर्मल रेंज कहलाएगा? क्या वो एक्सेप्शनली जल्दी चल रही थी? क्या मेरा बेटा एक्सेप्शनली देर में चल रहा था? ये हमें तब ही एहसास होगा जब हमें एक अंडरस्टैंडिंग और एक नॉलेज होगी कि बच्चे का व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर अ चाइल्ड टू स्टार्ट वॉकिंग. So we need to study not only individuals, we also need to study groups. मैम, मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? ये जो नॉर्मल रेंज की आप बात कर रहे हैं, इसका एक इंसान को अगर डे टू डे लाइफ में आप देखें तो जैसे पेरेंट्स हैं, उनको कैसे पता चलेगा? या तो उन्होंने कहीं पढ़ा हो या उनको किसी डॉक्टर ने बताया, उनको कैसे पता चलेगा कि नॉर्मल रेंज क्या है? हमारी एक स्टूडेंट अभी पेरेंटिंग के ऊपर अपनी पीएचडी ख़त्म कर रही है और उससे हमें पता चला है कि ज़्यादातर माँ बाप एक डॉक्टर के सहारे समझ सकते हैं. ज़्यादा प्रश्न वो कहते हैं कि हम डॉक्टर से ही पूछते हैं, क्या मेरा बेटा नॉर्मल है, नहीं नॉर्मल है, क्या मेरी बेटी में कोई दिक्कत है. तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज नहीं हैं, पर आई थिंक दैट द ICDS प्रोग्राम and of course people like you will be important resources जहाँ माँ बाप आ सकें और पता कर सकें क्या ये मेरे बच्चे की माइलस्टोन्स जो हैं ये नॉर्मल रेंज में, नॉर्मल कोई एक डेट नहीं होती है, नॉर्मल एक रेंज के बीच में आता है, क्या ये नॉर्मल रेंज में है. अगर बच्चा, हम देखें, अगर बच्चा बीमार पड़ गया है, बुखार हो गया है, तो वही थोड़ा सा टेम्पररी डिले कॉज कर सकता है. सो we have noticed that it is mostly doctors who provide this information, but there are many other sources. आजकल कंप्यूटर्स होने की वजह से इंटरनेट से बहुत इंफॉर्मेशन मिल सकता है हम लोगों को. और सोर्सेज हैं कि हम पब्लिकेशंस पर्टिकुलरली देखें, गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं. ICDS पे वो जो ग्रोथ चार्ट्स आते हैं जिसमें रोड टू हेल्थ कहलाया जाता है, इन ग्रोथ चार्ट्स में आप देख सकते हैं कि बच्चा अगर इस उम्र का हो तो उसका वजन कितना होना चाहिए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड ऑफ मैल न्यूट्रिशन. सो दीज, आई थिंक देर आर मेनी सोर्सेज. एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स फैमिली के विद इन भी हो सकती है दीपा. हम जो हमारे बुजुर्ग होते हैं घरों में, या एक आंटी होती हैं, या पड़ोसन होती है, या बुआ होती हैं, दादी माँ होती हैं, हर घर में या घर के पास कोई ऐसे जो बड़े लोग होते हैं उनको एक्सपीरियंस होता है. आई थिंक ज़्यादातर पुराने ज़माने में लोग उन्हीं के ऊपर फॉल बैक करते थे, उन्हीं को पूछते थे कि हमारा बच्चा ठीक चल रहा है, अगर कोई ऐसी दिक्कत है. पर अब हमें देखना है कि फैमिली में कई चेंजेस आ रहे हैं. जॉब्स के लिए लोग ट्रांसफ़र हो जाते हैं, अकेले बच्चों को पालते हैं. इन सिचुएशंस में ये बहुत ज़रूरी है कि आजकल के ज़माने में हमें अपने आप, पेरेंट बनने से पहले अपने आप हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर हमारे बच्चे में दिक्कत हो तो हम किसके पास जा सकते हैं. तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई वी स्टडी चिल्ड्रन साइंटिफिकली. हमारी पूरी कोशिश है, हमारा आज यहाँ होना भी ये एक कोशिश है कि बच्चों की साइंटिफिक स्टडी हम कैसे कर सकते हैं. और अगर हम प्रेजेंटेशन को देखते हैं तो एक साइंस का क्या मतलब है. जब हम कहते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट या चाइल्ड डेवलपमेंट एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, इसका मतलब कि जो भी हम उस सब्जेक्ट में कंक्लूड करते हैं वो किसी रिसर्च स्टडी के बेसिस पे होती है. सो when we say that human development is a science, it implies scientific procedures.
and scientific procedures imply research. Research क्या होता है? Research एक शब्द है जो search से बना हुआ है. Search का माने खोज, पर research का मतलब doing the investigation in a planned manner with objectives, with existing objectives, so that we know what we are looking for. अगर हमें एक रिसर्च प्रोजेक्ट में ये पता करना है कि बच्चे की चलने की क्या उम्र होती है, तो हम एक प्लान के हिसाब से चलेंगे. हम ढूंढेंगे बच्चों को उस उम्र के जो चलने के लिए तैयार हैं. हम उनकी एज रिकॉर्ड करेंगे, हम उनको काउंट करेंगे और फिर हम एनालाइज करेंगे. सो देयर इज प्लानिंग, देयर इज डेटा कलेक्शन एंड देयर इज एनालिसिस. तो इसी प्रोजेक्ट, अगर मैंने ऐसा प्रोजेक्ट किया होता तो उसके एनालिसिस में अंत में मैं ये कह सकती कि बच्चा इस उम्र पे चलना सीखता है ऑन एन एवरेज, और ये रेंज है. ठीक है जी. अब हम चलते हैं चाइल्ड स्टडी के एग्जाम्पल्स पे. व्हाट आर द डिफरेंट वेज in which we can study children? Children can be studied in 3 different approaches we can take. One is the cross-sectional study. Cross-sectional study एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें हम एक ही उम्र के कई बच्चों को देखकर, पढ़कर और कुछ कंक्लूजन्स पर आते हैं. क्रॉस सेक्शनल स्टडी, जैसे अभी उदाहरण दिया बच्चे के चलने का, ये एक ही टाइम पे आप काफ़ी सारे बच्चे लेंगे, उनको पढ़ेंगे, वो एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहलाती है. जैसे कि अभी हमारा रिसर्च जो चल रहा था, मैं बताना चाहूँगी कि उसमें हम लोगों ने एक रेंज सैंपल लिया बच्चों का कि इतने बच्चे हमें स्टडी करने हैं. फिर हमने कुछ, जैसे मैम ने बताया कि प्लानिंग करनी है, हमने एक प्लान बनाया कि हम उसमें क्या क्या मेथड्स इंक्लूड करना चाहते हैं, क्या बेसिक थ्योरी हैं हमारे जिसको बेस बना करके हमको पढ़ना चाहते हैं. तो हमारा उसमें मेन उद्देश्य था कि बच्चा अपने आप को कब पहचानना शुरू करता है. इसके लिए हमने बनाया कि हम लोग गांव में जाके भी ये देखेंगे और शहरों में भी देखेंगे. तो हमने बच्चे डिसाइड किए कि हम लोग 40 बच्चों को जैसे पढ़ना चाहते हैं, हमने उन 40 बच्चों को पढ़ा और फिर अंत में उसका डेटा कलेक्शन करके अब उसका एनालिसिस जो है अब हम करने वाले हैं. वही क्रॉस सेक्शनल स्टडी का एक एग्जाम्पल हो सकता है मैडम. ठीक है. अभी मैं जानना चाहूँगी तुम्हारे ये एग्जाम्पल में, आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग होगा अगर दीपा आप उनको ये बताएं कि बच्चा अपने आप को पहचानने लगता है. ये आपने कैसे पढ़ा? क्या आपने टूल्स लिए और क्या आप हमें बता सकते हैं कि बच्चा कितनी उम्र तक अपने आप को पहचानने लगता है? हाँ जी, ज़रूर. जैसे हमने थ्योरी में हमेशा जो हमने किताबें पढ़ी हैं उसमें यह था कि बच्चा जब 18 महीने का होता है उस समय वो अपने आप को पहचानना शुरू करता है शीशे में देख करके. तो हमने इसके लिए एक काफ़ी बड़ा सा शीशा लिया जिसमें बच्चा अपने आप को आसानी से देख सकता है. फिर उस बच्चे को थोड़ा टाइम देते हैं ताकि वो शीशे के साथ कुछ खेल सके, थोड़ा अपने आप को फेमिलराइज कर सके. फिर जो मेथड था, हमने उस बच्चे के चेहरे पर, मतलब थोड़ा नाक के पास और गाल के पास इस तरह से एक निशान लगाया और फिर उसको खेलने के लिए छोड़ दिया. तो कुछ बच्चों का रिएक्शंस थे कि कुछ बच्चों ने देखा और एकदम से उन्होंने चाहा कि ये निशान उनके मुंह से हट जाए. तो उन्होंने कभी खुद भी हटाया, कभी अपनी माँ के पास गए. तो कुछ बच्चों ने बहुत ही ज़ोर से रोना शुरू कर दिया, उनको गुस्सा आ गया कि ये अचानक क्या हो गया. तो इस तरह से हमें पता चला कि उन बच्चों को समझ आ रहा है कि हाँ ये हमारी ही तस्वीर है और हमें कुछ लगा दिया है. और कुछ बच्चों ने इसको बड़ा एंजॉय किया, वो हंसने लग गए कि हमारे फेस पे कुछ लगा है. और तो कुछ इस तरह से पहचाना भी नहीं होगा. हाँ, कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पहचाना भी नहीं. तो जैसे खेल रहे हैं तो खेलते ही जा रहे हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता. तो उन्होंने नहीं पहचाना अपने आप को. लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, हमने कुछ अपना टाइम उनके साथ व्यतीत किया, तो उसमें हमें पता चला कि 1 महीने बाद जैसे हमने कभी कभी उनको विजिट किया, तब बच्चों ने अपने आप को पहचानना शुरू किया. धीरे धीरे ये डेवलपमेंट हुई उनमें. So can we say that on the basis of this cross-sectional study, you were able to come to the conclusion that children recognize themselves around the age of 1.5 years. So this is an example that we have of a cross-sectional research study
from which we came to a specific conclusion. We come now to the next, which is a longitudinal study. Longitudinal study is that study which we take the same group of children for a long period of time. अब आप पूछेंगे कि इसकी क्या ज़रूरत है, क्या एक ही बच्चे को फॉलो अप करना क्या उसका क्या वैल्यू है. लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में हम एक बहुत अहम बात जान पाते हैं कि एक बच्चे की लाइफ में क्या क्या सिचुएशंस आती हैं और उन सिचुएशंस की वजह से व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑन अ चाइल्ड. वी कैन, as we found in the cross section study, we can come to conclusions as to what happens at a particular age. In a longitudinal study, we can come to conclusions about what is the sequence of development, what are the changes that take place one after the other when a child is developing. That is the value of a longitudinal study. I think Deepa, you also have an example of a longitudinal study that you are doing. जी मैम, मैं बताना चाहूँगी ये जो रिसर्च स्टडी एक और जो हम लोग कर रहे थे लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, उसमें बच्चे जब वो 3 मंथ्स के थे हम लोगों ने उनको तब स्टडी किया. उस टाइम पर जैसे उनका मदर चाइल्ड इंटरेक्शन था वो स्टडी किया. फिर जब वो बच्चे 19 मंथ्स के हो गए हमने फिर उनके फैमिलीज़ को विज़िट किया. फिर उस टाइम कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर्स थे जिनको हम पढ़ना चाहते थे. फिर वो बच्चे 3 साल के हुए तब हमने कुछ और चीज़ें जो हमारे दिमाग में थी, जो थियोरेटिकल बैकग्राउंड्स हमारे थे, उनको हमने रिसर्च करने की कोशिश की. और अब जब वो बच्चे 4 साल के हो गए हम फिर उनको स्टडी कर रहे हैं. तो ये तो बहुत ही मुश्किल है. क्या आप बार बार उन्हीं घर में जाते हैं? अगर वो बदल जाते हैं, अगर जैसे एक ट्रांसफ़र हो गया एक बच्चे का, तो हम कैसे फॉलो अप करते हैं ऐसे बच्चों को? मैम इन्हीं चीज़ों में थोड़ी सी दिक्कत आती है कि कुछ फैमिलीज़ जो हैं वो अग्री कर जाती हैं. अभी तक हमारे पास 40 फैमिलीज़ हैं जिनको हम लोग फॉलो कर रहे हैं. उनमें से ज़्यादातर ऐसा है कि अग्री कर जाते हैं कि आज ठीक है आप लोग आ सकते हैं. लेकिन कुछ फैमिलीज़ हैं जो नहीं चाहती हैं. और 4 साल थोड़ा लंबे समय होता है जब फैमिलीज चाहती हैं कि अच्छा ठीक है हो गया. लेकिन अगर कुछ फैमिलीज़ बाहर चली गई, जैसे कुछ फैमिली हमारी बॉम्बे चली गई हैं, पूना, अम्बाला, तो हम लोग वहाँ पे भी गए हैं. हमारे लिए बच्चा जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम पिछले कुछ टाइम से मतलब जब वो बच्चा 3 महीने का था हम तब से उसको पढ़ रहे हैं. तो हम नहीं चाहते कि हम इतना इम्पोर्टेंट डेटा उसको लूज़ करें. तो ये कुछ दिक्कतें हैं जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में सामने आती हैं. पर इसके जो रिवॉर्ड्स होंगे, जो एंड में आपके पास डेटा आएगा, वो एक बहुत वैल्यूएबल पूल ऑफ डेटा होगा. इट विल बी एक्सट्रीमली वैल्यूएबल फॉर अस टू सी what are the changes that take place in a child from the age of 3 months. 3 महीने पर बच्चा क्या कर सकता है? रो सकता है आई थिंक, और हाँ हंसना या स्माइल करना भी शुरू कर सकता है. एंड टू द एज ऑफ 4 years when a child is walking, running, playing, going to school, probably at least preschool पर हो सकता है, जो प्रेपरेटरी स्कूल होता है, पर ज़्यादातर घर में खेल कूद और जो बदलाव आता है बच्चे 3 महीने से लेकर 4 साल तक, ये इस प्रोजेक्ट के एग्जाम्पल को लेके हम पढ़ सकते हैं. अब हम आते हैं तीसरे अप्रोच पे. तीसरा जो हमारा अप्रोच होता है चाइल्ड स्टडी में, वो एक बायोग्राफिकल केस स्टडी अप्रोच होता है. इस अप्रोच में हम एक सिंगल केस को लेते हैं. एक सिंगल केस कई वजह से इम्पोर्टेंट हो सकता है. सिंगल केस बच्चे का भी हो सकता है, फैमिली का भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन का भी हो सकता है. अगर एक स्कूल में कुछ हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हम एक स्कूल की भी केस स्टडी कर सकते हैं देखने के लिए कि इस स्कूल में ही क्यों ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. तो हम जब एक केस को लेकर उसकी सारी डायमेंशंस को evaluate करते हैं, in order for us to have a detailed study about that institution, group, family or individual, it is called the biographical case study method or biographical case study approach. There are many reasons why a case study can be done on a single child. One can be due to diagnostic for diagnostic purposes. That means अगर बच्चा
किसी वजह से आपको लगता है कि उस बच्चे में डिले है या कोई ऐसी बात है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, या बच्चा हाइपर एक्टिव है या बहुत अग्रेसिव है औरों की तरह, तो हम एक केस स्टडी को यूज़ कर सकते हैं। इस सिचुएशन में ना तो आपको क्रॉस सेक्शनल स्टडी इतनी मदद देगी, क्योंकि ये एक बच्चे की जो तकलीफ है वो आप उसी को देख के समझ सकते हैं, ना आपको लॉन्गिट्यूडनल स्टडी इतनी हेल्प करेगी, क्योंकि इस बात का जवाब आपको अभी चाहिए, इस बच्चे की प्रॉब्लम आपको अभी सॉल्व करनी है। तो इस सिचुएशन में बायोग्राफिकल केस स्टडी इज अ वेरी वैल्यूएबल मेथड। इन दिस अप्रोच we take a detailed study of the child, we observe the child, we observe the family, we go, अगर बच्चा स्कूल जाता है तो you can talk to the teacher, so we try to establish all the details about a single individual so that we can come to a conclusion about that. यानी कि एक बच्चे को विस्तार से और पूरी तरह पढ़ना, यही केस स्टडी हुई ना? बिल्कुल। तो अगर बच्चे की माँ काम पर जाती है, खेत में जाती है, सुबह के 8 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक, ये बात भी आपको नोट करनी पड़ेगी। अगर इस बच्चे के 2 बड़े बहनें हैं जो उसके केयर में सहायता करती हैं, दैट वुड बी अ वेरी इम्पोर्टेंट डिटेल फॉर यू टू नो। If there is for some reason in the neighborhood another child with whom the child is having fights regularly, that is another detail. How will we get these details? These details are available to us only when we use the case study approach for child study. जी। I would like if there are any questions about this, otherwise we will proceed further. And I come to the next slide, in which we discuss the different methods of child study. जो स्टैंडर्ड मेथड्स होते हैं हमारे पास बच्चे को स्टडी करने के लिए, these are, as has been shown to you, observation. अपनी लाइफ में हम लोग इधर उधर देखते हैं, लोग आते हैं, कोई कमरे में आता है, हम देखते हैं वो आज क्या पहने हैं, what is this person looking at, what is she reading, what are you cooking. We are, as human beings, we are always watching other people, we are always looking at other people. And observation of children as a method of child study is simply using looking, or as Deepa earlier pointed out, critical looking at a child's behavior. But you need not observe only children, you can observe a whole family. How does the family interact with each other? The next method that we have is interviewing or questionnaire. Interviewing or questionnaire जो हम use करते हैं, simply it is about asking questions. Questions we ask in our everyday lives. जैसे दीपा को अभी कुछ देर पहले मैंने पूछा उसने सुबह खाने में क्या खाया था, तो उसने बोला हम पनीर के पराठे, right? So we ask questions in everyday life, but when we conduct an interview as a method of study, we can't use it with a baby. एक 3 महीने का बच्चा इंटरव्यू का जवाब नहीं दे सकता है, 2 साल का बच्चा भी नहीं दे पाएगा, पर 3 और 4 साल के आसपास एक बच्चा जवाब देने लगता है. And you can start interviewing using simple questions. But if you are interested in an infant, you can ask the mother, you can ask the grandmother about details about the child. मुझे लगता है कि बड़े बच्चों से भी जब हम बात करते हैं, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊं, हमारा जो रिसर्च स्टडी का जो डिस्कशन अभी हो रहा था, बच्चों से हमने कुछ क्वेश्चंस पूछने चाहिए, सिंपल 6 क्वेश्चन कि रात को आपने सोने से पहले क्या किया, सुबह उठने के बाद. बच्चे बात करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बात करते करते बीच में वो बोल देंगे कि मुझे नहीं बोलना, मुझको नहीं आता.
तो ऐसी सिचुएशंस में मदर का जो इंटरव्यू है या जो इंटरेक्शन है मदर के साथ या ग्रैंड मदर के साथ, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस इंफॉर्मेशन को हम एनरिच कर सकते हैं अपने इंटरव्यू शेड्यूल्स के साथ, या जो क्वेश्चनर्स हमने एडल्ट्स के लिए बनाए हैं उनके साथ। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक है जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। दीपा, पर ये इंटरव्यू और क्वेश्चनर दो अलग अलग तरीके हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, एंड हाउ डू वी डिस्टिंग्विश, व्हेन डू वी यूज इंटरव्यू एंड व्हेन डू वी यूज क्वेश्चनर, डू यू यूज बोथ ऑफ देम? जी, हम लोग दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। इंटरव्यू सिंपली मीन्स जैसे आपने टीवी में भी देखा होगा, किसी स्टार का इंटरव्यू आता है तो एक क्वेश्चन पूछ रहा होता है और जो दूसरा है उसको बताना होता है। वो लिटरली इट्स अ इंटरव्यू, आप दूसरे से क्वेश्चंस पूछते हैं और आपको आंसर्स मिले। लेकिन क्वेश्चनर्स जैसे फैमिलीज के साथ ही हमारा काम रहता है, तो हम लोग क्वेश्चनर्स छोड़ देते हैं कि ये आपको अपने आप पढ़ के आपको इसको भरना है। तो ये बेसिक डिफरेंस जो इन दोनों में है वो यही है कि इंटरव्यू में आप खुद भी एक इंटरव्यूई होता है, एक इंटरव्यूअर होता है, और क्वेश्चनर्स में आप जिसको भी क्वेश्चनर्स देना चाहते हैं उनको खुद भरना होता है। But Deepa, you told me that you also go to villages. Now, in villages, whether a person is literate or not, that would make a difference. So, what do you do in those situations? मैम, ये बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया आपने, क्योंकि जब हम लोग अभी विलेजेस में गए थे तो वहाँ पर हमने जो बनाया था इट वाज अ इंटरव्यू ओनली। हमने सोचा कि हम मदर्स को बैठ के, सॉरी इट वाज अ क्वेश्चनर कि मदर्स को वो देने थे, लेकिन वहाँ पर मदर्स लिटरेट नहीं थी। तो ऐसे टाइम पर हमने सोचा कि क्या किया जाए, तो हम खुद बैठ के उनको इंटरव्यू करते थे। तो कई जगह पर एक दिक्कत जो मुझे लगता है वो ये आई कि हम लोग जो उनको समझाना चाह रहे थे वो हम नहीं समझा पा रहे थे। कुछ शब्द ऐसे थे जो उनको नहीं आते थे, या कुछ बातें ऐसी थी जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, या उन्होंने कहा कि इसका तो हमें पता ही नहीं कि आप कहना क्या चाह रहे हो। बहुत कोशिश की, उसको ट्रांसलेट किया, रीट्रांसलेट किया, जो रीजनल लैंग्वेज है उसका हमने यूज़ किया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कभी इंटरव्यू का थोड़ा सा एक नुकसान भी होता है। तो वो जो समझाने वाली बात है कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। नुकसान तो तब होगा अगर हम, जो हमारी इंटरव्यूई कहलाती हैं, अगर हम उनको ठीक से समझ ना पाएं। तो एक अच्छे इंटरव्यूअर का यही एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जिसको आप इंटरव्यू कर रहे हैं कि उसकी समझ को लेकर चलना, उसका जो समझने का तरीका है वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ द स्किल ऑफ इंटरव्यूइंग। इज़ देयर अ क्वेश्चन, दीपा? नहीं मैम, मेरे ख्याल से हम आगे चल सकते हैं। अच्छा, द नेक्स्ट थिंग वी कम टू इज रेटिंग स्केल्स। ये क्या चीज़ होती है? रेटिंग स्केल्स बेस्ड होते हैं मेजरमेंट के ऊपर। हर रोज़ ज़िंदगी में भी हम मेजर करते हैं। अगर आपको घर पे खीर बनानी है तो हो सकता है आपको अब बहुत दिन हो गए मुझे खीर बनाए, 2 किलो दूध में 1 मुट्ठी चावल डाल के, ये भी एक तरीके का मेजरमेंट होता है। तो वी मेजर थिंग्स इन एवरीडे लाइफ। सिमिलरली व्हेन वी आर स्टडीइंग चिल्ड्रन आल्सो वी कैन मेजर। एक बहुत सिंपल एग्जांपल है कि बच्चे का हाइट और वेट हम मेजर कर सकते हैं in order to see whether the child is healthy. But it is also possible for us to measure psychological aspects of a child's behavior, and we will come to examples later. I think this example that Deepa gave of measuring or assessing when a child recognizes herself in the mirror, that is an example of a measurement. The next thing we come to as an important method of child study is clinical investigation. Clinical investigation is used when there is again some reason to look more carefully at a particular child. The clinical investigation can be done either in a clinic or in the home or in the field, but it involves a trained person to look carefully as to the reasons why something is happening or not happening. So if a child, particularly हम case study approach में clinical investigation कर सकते हैं, जब कोई problem अगर हमारे सामने आता है और उसका हम solution ढूंढना चाहते हैं कि किस वजह से ये बच्चे में ये बात बार बार आ रही है, so we can resort to clinical investigation.
Lastly, we come to experimental method. In एक साइंटिफिक डिसिप्लिन का फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हम देखते हैं, या अगर हम और भी पीछे जाएं तो बायोलॉजी में, जैसे पौधा कैसे उगता है. एक मुझे याद है हमारे नर्सरी स्कूल में एक बहुत ही मज़ेदार एक्सपेरिमेंट किया जाता था हमारे बच्चों के साथ जब वो नर्सरी स्कूल में थे, कि एक राजमा का बीज आप बो दें 2 या 3 कपों में. एक में आप पानी डालें और धूप में रखें, दूसरे में आप पानी डालें पर धूप में मत रखें, और तीसरे में जो आप ना पानी डालें, and you don't put it out in the sun. And I remember how excited the children were when they saw that the first rajma grew into a healthy plant, the one that was in the sun and had water. The second one grew, पौधा तो निकला, पर वो एक बहुत ही कमजोर सा फीके से रंग का पौधा निकला. वो अंकुरित होके जो रह जाता है वो पूरा नहीं बनता है. राइट. और जो तीसरा था वो राजमा, तो मिट्टी भी सूख गई, राजमा भी सूख गई, और वो बीज वहीं का वहीं रह गया. ये एक एग्जाम्पल है एक्सपेरिमेंटल मेथड का. पर बच्चे तो राजमा के दाने नहीं होते ना. वी हैव टू फाइंड ways of studying children without interfering too much in their lives. This is extremely important for us to understand कि जो हम बीज के साथ कर सकते हैं, जो हम नमक या पानी या पेड़ के साथ कर सकते हैं, पौधों के साथ कर सकते हैं, वो हम इंसान के साथ नहीं कर सकते. एक बच्चे की लाइफ में हम ये नहीं कह सकते कि हमें भूख का असर बच्चों पे देखना है तो हम बच्चों को एक दिन के लिए खाना नहीं देंगे. दैट इज नॉट पॉसिबल. वी कैन नॉट एक्सपेरिमेंट टू सच एन एक्सटेंट. सो वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट although experiment controlling of situations and observing outcomes is something that we do every day, it is extremely important that there are limits to experimenting with human beings. मैम इसके कुछ रूल्स हैं क्या जिनको शायद हम एथिक्स ऑफ रिसर्च कहते हैं? बिल्कुल. क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हो? रिसर्च स्टडी में एथिक्स एक बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि आप अपने आप को अगर लेके चलें कि मेरा बच्चा इस जगह में होता तो मैं ये काम अलाउ करती या नहीं. इफ यू वुड नॉट अलाउ इट फॉर योर चाइल्ड, you should not expose anybody else's child to that. एक बच्चे के बारे में words use करना जो आप अपने बच्चे के लिए नहीं use करेंगे, ये ध्यान हमें रखना पड़ता है कि जो भी हम शब्द use करते हैं और जो भी हम analysis करते हैं बच्चों के बारे में, it should be within keeping the family and the individual child's respect in mind. उनका जो रिस्पेक्ट है उसको कभी वी शुड नॉट वायोलेट दैट रिस्पेक्ट. एंड एन एग्जाम्पल दैट आई गेव यू, आई मीन यू कैन नॉट कीप अ चाइल्ड हंग्री इन ऑर्डर टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ हंगर ऑन चिल्ड्रंस बिहेवियर. Very quickly, let us just recapitulate the different aspects of observation. Observation is the systematic and planned use of looking. We look at something, we observe that. There are different ways in which we can observe. You can observe by choosing a specific behavior for study, like verbal behavior or aggressive behavior. अगर हमको लड़कों और लड़कियों के aggressive behavior में जो मारपीट का behavior होता है उसमें अंतर देखना होता है, we can observe by looking at boys and girls to see whether there are any differences between children's, boys and girls' aggressive behavior, verbal behavior. The second way in which we can do scientific observations is by taking a specific time period for study. कि हम जाके बैठेंगे घड़ी लेकर और इस दौरान के बीच में हम देखेंगे कि बच्चा क्या कर रहा था और उसका हम नोट करेंगे. याद रखिएगा कि when you are doing an observation, you have to either have a video camera in which that is you note everything is recorded,
पर अगर हमारे पास वीडियो कैमरा या वीडियो इक्विपमेंट नहीं है तो हम एक पेन और पेपर पे एक एक चीज़ लिखना ज़रूरी है जो बच्चा करता है। क्या दीपा आपने कभी ऑब्जर्वेशन यूज़ किया है अपने प्रोजेक्ट में? मैम बहुत बार जब हम लोग इनफैक्ट जब हम लोग अपने मास्टर्स में पढ़ रहे थे, ऑब्जर्वेशन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक थी जिसको बहुत ही यूज़फुल माना जाता था। हमारे कॉलेज में एक नर्सरी स्कूल है, हम लोग वहाँ जाते थे और 1 घंटे के लिए या कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए बच्चों को ऑब्जर्व करते थे। तो जैसे अभी आप एग्जाम्पल दे रहे थे अग्रेसिव और वर्बल बिहेवियर का, मुझे याद है हमें एक असाइनमेंट मिला था, उसमें हमें अग्रेसिव बिहेवियर जो था उसको स्टडी करना था। तो 5 मिनट या 2 मिनट हमने एक टाइम लिमिट सेट की कि इतने टाइम के अंदर हम देखेंगे कि ये बच्चा कितनी बार उस बिहेवियर को रिपीट करता है। तो मुझे लगता है शायद वो जो सेकंड पॉइंट आप बना रहे थे अभी टाइम पीरियड स्टडी का, उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकता है। तो अगर एक बच्चा 5 सेकंड या 5 मिनट के समय के अंदर इफ one child expresses 10 acts of aggression and another child expresses only 1 act of aggression, then we can come to the conclusion that the first child is more aggressive than the second child. So this is an example of how we use observations in order to study children. मैं एक बार कुछ बताना चाहूँगी। हमारे पास एक क्वेश्चन आया है हैदराबाद से। इन्होंने पूछा है कि जो क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन मेथड्स की हम अभी बात कर रहे थे, उसमें कौन जो है हु विल बी द करेक्ट पर्सन जो इन्वेस्टिगेट करेगा, एक साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट या एक टीचर? See, for a clinical investigation to take place, medical person तो legitimately एक clinical examination कर सकता है, but here the clinical investigation will require who is the person who will do the clinical investigation depends on the nature of the problem. If the problem is a medical problem, that is बच्चे का अगर वजन नहीं बढ़ रहा है, 5 महीने हो गए हैं और आपने बार बार बच्चे का वजन लिया है और बच्चे का वजन उतना ही है और किसी वजह से बच्चे को भूख नहीं लग रही है, तो हम डॉक्टर के पास क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन करने जा सकते हैं। अगर प्रॉब्लम हमें साइकोलॉजिकल लगता है कि बच्चा बहुत परेशान है किसी वजह से या इम्तिहान होने वाले हैं, एंड बिफोर द एग्जामिनेशंस द चाइल्ड गेट्स सो स्कैर्ड that the child is not able to do anything, then I think it is important to go. I would also trust a teacher in this case. However, I am not sure if the teacher is trained to do the clinical investigation or not. The important thing to know is that for clinical investigations, you have to have a person who has a legitimate degree so that the clinical investigation can follow the correct procedure. It is not possible or it is not advisable to send or to ask for a clinical investigation from an untrained person. So I would say अगर problem psychiatric है, behavioral है, अगर आपको लगता है कि आपके 12 साल की बेटी में कोई ऐसी डिफ़िकल्टी है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, सडनली एक बदलाव आ गया है उनके बिहेवियर में, तो आपको हो सकता है साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के पास जाना पड़े जी। सो टू आंसर दिस क्वेश्चन फ्रॉम हैदराबाद, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन, द आंसर इज दैट who you go to for clinical investigation depends on the nature of the problem. I hope this answers your question, otherwise please feel free to ask again. मैं एक इसमें बात जोड़ना चाहूँगी जिसकी आपने बात भी की है कि जैसे पेरेंट्स जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले कर सकते हैं। जैसे भी आपने एग्जांपल दिया 12 साल की लड़की का, तो उसकी माँ है, इवन उसकी जो सहेलियाँ हैं, जो उसका ग्रुप है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कहीं ना कहीं कि कहीं जाकर कुछ चेंज है तो उसको सामने लाना कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो उस तरह से उस प्रॉब्लम को सामने लाया जा सकता है फैमिली के या टीचर के, अगर ऐसा कुछ स्कूल में है। अब दीपा आप क्या कर रही हैं इस टाइम पे, आपने 2 मेथड्स को जोड़ दिया है। अच्छा। और सही बात है कि जब एक आपके सामने एक प्रॉब्लम है, आप कंबाइन भी कर सकते हैं, आप ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, आप केस स्टडी जो अप्रोच होता है, जो बायोग्राफिकल
केस स्टडी अप्रोच मैंने शुरू में बताया था, जब मैंने बोला था कि 3 तरीके के अप्रोच हम यूज़ कर सकते हैं, which are cross sectional, longitudinal and case study. In a situation like this, if a 12-year-old girl is having a problem, we should use the biographical case study approach, so that we use all methods. We can use interviewing also, we can interview her mother, we can interview her friends, we can do a clinical investigation, that is, we can take the child to a psychologist or a counselor for evaluation. We can also observe the child among her friends while she is playing, while she is at home, while she is eating her food, in order for us to come to a conclusion. But for the clinical examination, you will have to go to a clinic in order for you to do that. जी. Let us return now to the observation method again, and if we can see the slide, taking a specific time period of study की बात हो रही थी. That means we can select a specific time, short time periods, in order to compare. As I said, we can have one child who within 1 minute does one act of aggression or none, and we have another child who within that period of time does 10 times he hits another child. So we need to have some control on the observation, and here we are controlling by time. We can also select a specific person for study. एक पर्टिकुलर बच्चा, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, तो केस स्टडी अप्रोच में हम अलग अलग मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये एक एग्जाम्पल हुआ ऑफ सिलेक्टिंग अ स्पेसिफिक पर्सन फॉर स्टडी. वी कैन ऑल्सो सिलेक्ट अ पर्टिकुलर सिचुएशन फॉर ऑब्जर्वेशन. जैसे अगर हम चाहते हैं कि बच्चों की आउटडोर प्ले, ये मेरा एक आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक माई फेवरेट कॉमेंट अबाउट चिल्ड्रन. I grew up at a time when there was no television and we used to play on the streets. हम लोग क्रिकेट खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, कंचे खेलते थे. And somehow I feel that in the lives of children today, particularly children who live in cities and towns, there is very little outdoor play. हमारी गाड़ियाँ बहुत तेज़ हो गई हैं, पर जो रोड्स हैं वो बच्चों के लिए सेफ़ नहीं हैं. जो हमारा सोसाइटी है उसमें भी इतने बदलाव आ गए हैं कि बच्चे का बाहर खेलना एक मुश्किल सी बात हो गई है. गांव में अभी भी हम बच्चों को खेलते देख सकते हैं, छोटे शहरों में अभी भी देख सकते हैं. एक सेफ तरीके से एक बच्चा खेल सकता है. पर अगर हम याद करें कि प्रिंस जो बच्चा गिरा था वो खेल रहा था और वो उसको दिखाई नहीं दिया, तो बड़ों की तरह बच्चों को इतना एहसास नहीं होता है कि कौन सी सिचुएशन हमारे लिए डेंजरस है और कौन सी सेफ है. सो आई थिंक दैट I'll use this opportunity to say that it is extremely important and it is a responsibility of the parents to ensure that children get outdoor play. That is why I used outdoor play as an example of choosing a particular situation for observation. अगर हम देखना चाहते हैं कि बच्चे बाहर किस तरीके से खेलते हैं, लड़के लड़कियों में क्या अंतर है बाहर खेलने, अगर हम बाहर जाके देखेंगे तो हो सकता है भागा दौड़ी में लड़के ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, लड़कियां किसी और तरीके के खेल में ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं. ये बात we can conclude things like this only if we select a particular situation for observation. मैम आपका ये जो एग्जाम्पल था आउटडोर प्ले एक्टिविटी का, जब मैं अपना मास्टर्स कर रही थी तो हमारे मास्टर्स में एक डिसर्टेशन करना होता है, वो इट्स अ स्मॉल रिसर्च. तो मेरा डिसर्टेशन जो था वो इसी पर था, व्हाई डू यंग चिल्ड्रन प्ले एंड व्हाट आर पेरेंट्स पर्सपेक्टिव ऑन इट. तो ये जो आपने बात कही कि आउटडोर स्पेस जो प्ले का आजकल बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गया, हमारी सोसाइटीज़ में जगह ही नहीं है. बहुत हैरानी हुई थी जानकर कि पेरेंट्स इस बात को जानते हैं कि बच्चों के पास जगह नहीं है खेलने की, फ्लैट्स हैं, 12वीं मंजिल पर अगर घर है तो बच्चा नीचे नहीं आ सकता. लेकिन इसके लिए भी कुछ सॉल्यूशन उन्होंने क्या ढूंढा है कि या तो घर में ही खिलौने ला के रख दिए, या अगर बच्चा है तो उसका इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि नहीं आपको नीचे नहीं जाना. लेकिन कॉन्क्रीट सॉल्यूशन मुझे कहीं नहीं दिखा. और ये बात है अपनी जो ये हम कहते हैं हाई सोसाइटीज़ हैं उनकी भी, और एक रीसेटलमेंट कॉलोनी में जहाँ पर मैंने डेटा कलेक्शन किया था
वहाँ पर भी यही बात है कि पेरेंट्स कहते हैं बच्चों के लिए खेलने की जगह ही नहीं है, लेकिन हाँ उन्हें इस बात का रियलाइजेशन ज़रूर है कि जगह जो है बच्चों की खेलने की बिल्कुल ख़त्म हो गई है। लेकिन फिर भी बच्चे अपनी उसी भाग दौड़ में उसी मस्त तरह से खेलते हैं, कूदते हैं, तोड़ते हैं शीशे खिड़कियों के भी। क्या दीपा आपने ऑब्जर्वेशन यूज किया था अपनी जी, study में? मैंने 3-4 टेक्निक्स यूज़ की थी, जिसमें ऑब्जर्वेशन एक बहुत महत्वपूर्ण टेक्निक थी। दूसरा इंटरव्यू किया था, जैसे हम बता रहे थे कि बच्चे सब कुछ नहीं बताते हैं। मैंने जो बनाया था वो बच्चों के लिए वो बिल्कुल फेलियर हुआ, क्योंकि जब बच्चों के खेलने का टाइम होता है आप उनको बिठा के क्वेश्चंस पूछोगे, भूल जाइए, वो बिल्कुल जवाब नहीं देंगे। तो हमने उनकी जो मदर्स थी उनके साथ इंटरव्यूज़ किए, उनके सिबलिंग्स के साथ, भाई बहनों के साथ, और जो कुछ हमने गेम्स बनाए थे, जैसे एक मैंने यूज़ किया था, उसको वर्ड नेट बोलते हैं। कुछ एक शब्द लेके उसके आसपास शब्दों का एक जाल बुनना और उसके बाद उसका एनालिसिस करना कि इसका क्या मतलब था। तो इस तरह की कुछ कुछ नई नई टेक्निक्स थी जो हमने बनाई, क्योंकि हमें बच्चों के साथ काम करना था। तो ऑब्जर्वेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा था मेरे उस रिसर्च का। तो इसका मतलब कि दीपा के एग्जाम्पल से हमें पता चलता है दैट वी कैन ऑल्सो इम्प्रोवाइज आवर ओन मेथड्स ऑफ चाइल्ड स्टडी. We can use different ways of studying children, but it is important to know that the procedure that you follow must be fair and acceptable to the children's families. हमें कोई ऐसा मेथड नहीं यूज़ करना जो माँ बाप के लिए एक्सेप्टेबल ना हो. तो एक और बात जो दीपा के एग्जाम्पल से पता चली इज दैट व्हेन वी आर using a technique with children, it is very important for us to be playful ourselves. If we keep a very serious attitude कि अब हम आपका टेस्ट ले रहे हैं, तो बच्चा तो अगर उसका खेलने का टाइम होगा तो वो बैठेगा ही नहीं आपके पास. बड़े हो सकता है बैठ जाएं, थोड़ा सा शर्मा जाएं, ठीक है ये दीदी आई हैं इतनी दूर से और आपसे कुछ बातें करना चाहती हैं, तो बड़े तो बैठ सकते हैं, पर बच्चे को ये एहसास इतना होता नहीं है. सो वी हैव टू बी वेरी playful when we are interacting. छोटा सा एग्जाम्पल, और अभी जो हमारा रिसर्च चल रहा था जिसके लिए मैंने बताया कि हम लोग बॉम्बे गए थे, पुणे गए थे, तो पुणे में एक बच्चा था जिसके साथ हम लोग ने प्लान किया कि ठीक है हम लोग जाएंगे, इस वक्त हमारी ये एक्टिविटी होगी. हम उस बच्चे के घर गए और आप विश्वास नहीं करेंगे 2 घंटे तक हम लोग कोशिश करते रहे कि हम उस बच्चे के साथ खेलेंगे, लेकिन उसने बिल्कुल सीधे सीधे मना कर दिया कि उसको नहीं खेलना. तो आप बैठिए, उसको नहीं खेलना तो नहीं खेलना. फिर हम अगले दिन उसके पास गए, फिर उसने थोड़ा और जाना और 1-1.5 घंटा लगा, फिर कहीं जाकर के हम लोग अपना काम कर पाए उस बच्चे के साथ. तो मतलब जब हम फील्ड में गए हमें लगा कि सब कुछ वैसे ही होगा जैसे हमने सोचा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. बच्चे तो फिर अपने तरीके से ही उन्होंने तो जब हम बच्चों की स्टडी करते हैं तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक नौकरी की तरह नहीं है कि आप सुबह चाहते हैं कि 9 बजे हम काम शुरू करें और 9:30 बजे हमें वहाँ से ख़त्म करके और कहीं और जाना है. We have to wait it out. As Deepa has said many times, when they go for field work, they come back without doing the work that they had planned for the day. And remember, I said research is about planning. So, was it that your plan was wrong? No, I think it is very important to know that you can go with a plan, but we have to understand that we are studying children, and so we have to sometimes wait so that the child is ready for what you want to do with the child. I hope that this has made the technique of observation, the method of observation clear to you. If there are any questions regarding observation as a method of child study, I will be very happy to answer them. This is an example of children who are playing. ये देखते हैं बच्चों को ये कैसे घूम रहे हैं. कुछ लड़कियां हैं, कुछ लड़के हैं. एक टीचर वहाँ पे बच्चों को कुछ समझा रही है. हम देखते हैं कि पीछे एक छोटा सा घर बनाया हुआ है. And the teacher is asking the children what is going on there. You can see the degree of interest in these children. So if we wanted to know what I am doing here is I am giving you an example of observation. From this clip, we can see that children have different interests when they go for play. There are 4-5 children who are on the swing. There are 2-3 children who are just watching. There are some children who have gone into the house and are playing house. A teacher is constantly talking to them. So observation gives us
a very clear idea about the ways in which children behave, the way in which children interact. We move now to the next technique, which is interviewing. जैसे कि आपको पहले बताया था, all information about children cannot be extracted from children themselves. Yes, we can observe when a child starts sitting, when a child starts walking, when a child starts running, how a child's behavior, is it aggressive or not, but all answers cannot be obtained by watching a child himself or herself, क्योंकि एक researcher, एक टेक्निकल पर्सन 24 घंटे बच्चे के साथ नहीं रह सकता है. अगर आपकी स्टडी है बच्चों के सोने की प्रेफरेंसेस, सोना आई मीन स्लीपिंग प्रेफरेंसेस ऑफ चिल्ड्रन, वेयर डू चिल्ड्रन स्लीप? Does the child sleep with the mother? Does the child sleep with the father? Does the child sleep with the grandmother? Or does the child sleep alone? It may not be possible for you to get this information from a child. You may not get reliable information from a child. Reliable मतलब जो वो information हो सकता है आज आप पूछेंगे बच्चा एक बात कहेगा, and tomorrow if you ask the child might say something else. So when we want information about children, we can also ask other people, and interviews and questionnaires are examples of those. I'd like to focus on some of the basic aspects of interviewing. Interviewing and questionnaires are based on questioning, talking and listening. ये एक मैं बहुत ज़रूरी बात कहूँगी, ये एक बहुत सिंपल बात है पर हम कभी कभी भूल जाते हैं. And that is the importance of listening. सिर्फ प्रश्न पूछना ही important नहीं है. You have to be able to listen to what the person is saying. जब तक उस parent की बात ख़त्म नहीं हो जाती तो आपका सुनना, वो बात पूरी तरह और लगन से सुनना एक बहुत ज़रूरी बात है. In order to understand a child, we need to involve family members. As I had given you the example, we can also use interviewing with children. In Deepa's study, we understood how her dissertation was on play among children, in which she interviewed both children and parents. But remember, questionnaire cannot be used with young children because they cannot read or write. Children start to read or write and would be able to answer questionnaires only, I think, around, would you say, Deepa, class 5 or 6, Yeah. not before Ji. that. But as a research technique, I would say until a child is about 11 or 12, I think it is better to use interviewing Ji. rather than questionnaire. It is again, when we are doing an interview, one of the important steps is हमें एक topic select करना है जिस पे हमको question करना है. जैसे कि यही example मैं लूँगी कि बच्चे खेल कूद कैसे करते हैं, कहाँ खेलते हैं, पेरेंट्स की क्या व्यूज़ हैं खेल के बारे में. एक टॉपिक सिलेक्ट करके हमें फोकस करना पड़ता है और सारे जो क्वेश्चंस हैं उसी टॉपिक के ऊपर बनाए जाते हैं. सोचा जाता है कि ये क्वेश्चन माँ बाप को समझ आएगा या नहीं समझ आएगा. अगर बच्चे को आप पूछ रहे हैं तो यू हैव टू यूज़ इवन सिंपलर वर्ड्स. सो इफ I have, if I'm interested in play, let us take Deepa's example. If I'm interested in play behavior of children and my interview question is, what is the role of peers during play? ये जो question है, it is very difficult for a child to understand what peers is. हमें भी college में ही आके समझ आया था कि peer क्या होता है. Peer literally means somebody of your own age. So the question is related to what is the role of age mates during play. This question has to be broken down into simpler, smaller parts that can be put as questions to a child. जैसे कि कौन से दोस्त आपके हैं जिनके साथ आप खेलते हैं, क्या वो लड़के हैं, क्या वो लड़कियां हैं, अगर आप जेंडर पैटर्न्स में इंटरेस्टेड हैं, क्या क्या खेलते हैं आप, क्या चीज़ें लेते हैं, क्या आप बॉल से खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं.
So these are the ways in which, so बच्चा ये अगर बोलेगा कि yes, my neighbor, my friend has a cricket bat and ball, a new bat and ball, so I use, we play together, और वो I like him very much because उसके पास बहुत अच्छे खिलौने होते हैं. This is, you can see, this is an influence of peers. But we cannot use technical language when we are asking children and parents the same questions. Our language has to be translated into a language that can be understood by parents. I think Deepa has some examples of this from her research. जैसे अभी मैंने बताया कि हम लोग रूरल साइट में भी थे, जब हम नीमराना जो हमारी साइट थी वहाँ पर हमने क्वेश्चनर्स, अभी मैम बच्चों की बात कर रही थी लेकिन यहाँ पे मैं मदर्स का एग्जांपल थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी. एक क्वेश्चन हम उसमें पूछते थे स्वतंत्रता के बारे में. आपको क्या लगता है कि आप स्वतंत्र होके, आप अपने जो भी विचार है स्वतंत्र होके आप अपने घर में बता सकती हैं? किसी से भी पूछिए स्वतंत्र इस शब्द का मतलब मालूम होगा, लेकिन वहाँ गाँव में हमको इस शब्द को पूछने, इस पूरे विचार को पूछने में इतनी दिक्कत महसूस हुई कि हमने काफ़ी सारी इस पर मीटिंग्स की छोटी छोटी, कि इसको क्या किया जाए और इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए. तो फाइनली हमने उनसे यह पूछा कि आपको क्या लगता है जो आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो. तो वो भी एक स्वतंत्रता का एग्जाम्पल ही है. तो इस तरह से फिर उनको समझ में आया कि हाँ हम क्या पूछना चाह रहे हैं. और जहाँ तक बच्चों का सवाल है उनसे तो उन्हीं की भाषा में हमको पूछना पड़ता है, जो वर्ड्स उनके हैं, कि आपको खेलने में बड़ा मजा आता है या और कैसा लगता है, इस तरह के शब्द. तो क्या original question, if I can just bring it back to the original interview question, I think the objective of this item was to ask what according to you is the importance of independence. Do you feel that you are independent as a woman to express your views in any way or in every way in the home? So ये जो एक एकेडमिक हम अपने ऑफिस में बैठ के हमने बहुत अच्छा इंटरव्यू शेड्यूल बना लिया, एक बहुत अच्छा क्वेश्चनर बना लिया. जब असलियत सामने आती है तो हमें एक तैयारी रखनी चाहिए कि जो हमारे वर्ड्स हम सोच रहे थे कि सबको स्वतंत्रता, जो ये शब्द है एक बहुत साधारण शब्द है, पर स्वतंत्रता देश के, if you take it with reference to the country, it's easier to understand or better used. Have we really talked about independence of the individual? So कई बार शब्द भी और वो आइडिया भी एक अनफेमिलियर सा आइडिया हो जाता है और उसमें समझने में, समझाने में और हमारे समझने में भी दिक्कतें आ सकती हैं. We have to be very careful when we are using interviews and questionnaires to make sure that the person whom you are interviewing has understood your words, and next step, that you have understood the words that the person is saying. If you have not accomplished that, then what is the danger? We can come to wrong conclusions about people. And वो एक बहुत ही I would say avoidable step है. अगर हम किसी और के बारे में कुछ गलत लिखते हैं या छापते हैं, उसका एक बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंस होता है. And we should take care that we don't do such kinds of analysis. I will return to the points about interview and questionnaire now. And we come to selecting a particular topic for questioning, and we had given the examples of play. The next thing that is important is planning the questions in a systematic sequence. एक order होता है, एक sequence होती है which we have to follow when we are asking questions. We cannot just pick up any one question which is very sensitive and bring it as a first question. Initially, you have to take some time to establish a friendly atmosphere. उनके बारे में थोड़ी सी बातें पूछें and then go on to the questions about play. जैसे कि I'm sure when Deepa went to study play behavior among children, I'm sure she must have spent some time in saying, अच्छा आपका नाम क्या है, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, जब बच्चों से बात की. या when she goes to her mother, she may have asked,
you know, how long have you lived in this house, what is your name, how many children do you have. In this manner, an interview is always done or accomplished by keeping a friendly relationship between the interviewer and interviewee, and the questions should always follow a planned sequence. Next point that is important for us is to ensure that the person is comfortable and understands the questions. इसके I think I have given some examples before. मैम मुझे यहाँ पर एक बात पूछनी थी. एक और जब हम लोग क्वेश्चनर बनाते हैं उसमें होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन. क्या आप उस पर थोड़ा सा कुछ बता सकते हैं? जो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे होते हैं जिसमें आपने ऑप्शंस जो हैं दिए होते हैं, जैसे हाँ कि ना. जैसे आपका क्या विचार है, क्या बच्चे को बाहर खेलना, आउटडोर प्ले, इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अ चाइल्ड, yes or no. This is an example of a closed ended question. कई बार जैसे closed ended questions बड़े useful होते हैं, जैसे आपका सेक्स मेल और फीमेल, ये एक closed ended option है. एज, are you 20, 25, 30, 35 or between, these are closed ended options. So when a question has specific possible answers we used closed ended questions. But अगर हम एक बात की गहराई में जाना चाहते हैं, if we want to know what exactly the person thinks about a particular issue, जैसे let me come back to Deepa's question about swatantrata or independence. Are you free to express your views independently at home? I think in a question like this, to have closed-ended options would be a bit limiting. It would be important for us also to get the open views of a person. So we can use both closed-ended and open-ended questions depending upon the topic and the issue that we are trying to study. लेकिन उसके फिर एनालिसिस में कोई किस तरह की उसका एनालिसिस किया जा सकता है? क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस का एनालिसिस करना बहुत आसान है. जैसे अगर आप उम्र ले रहे हैं, इट इज यू कैन जस्ट काउंट अप द नंबर ऑफ पीपल हु आर 20 years old, number of people who are 25. Closed ended questions are easier to analyze because there are limited options. Open ended questions, they give you detail but they are harder to analyze. Why? Because हर एक इंसान के अलग विचार होते हैं, और जब हम एनालिसिस करने लगते हैं, when we reach the end of our research, data collection is easy. आपने जाके और बात पूछी, पर जब आप सारे कागज घर लाते हैं तो how will you make sense of all the answers that the people have given? Open-ended questions or those questions that allow open-ended answers are harder to analyze and require more training. So what we do usually is सारी आंसर्स को पढ़ के फिर उनके ऑप्शंस देख के फिर उसके बारे में उनको समराइज करना पड़ता है. ये एक स्लाइड में दिखाऊंगी अभी. ये आप कहीं पे दीपा को पहचान पाएंगे, यहाँ जहाँ मेरा एरो है. ये दीपा और पूजा और दिव्या, ये तीन हमारे रिसर्चर्स हैं. जो ये दीपा नीम राणा की पिक्चर है, मुझे याद है मैं भी थी. तो क्या आप बताएंगे यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, जो महिला खड़ी हुई हैं पीले रंग की चुन्नी में, ये उस बच्चे की माँ है जिनसे हम इंटरव्यू कर रहे हैं. एक्चुअली इनको क्वेश्चनर दिया गया था लेकिन वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो इसलिए हमने उनको इंटरव्यू करना चाहा. और वहाँ साइड में जो नीचे जो दो महिलाएं बैठी हैं, यहाँ एरो पे आप देख सकते हैं, ये इनकी सास हैं. तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये है कि जब ये महिला इन क्वेश्चंस का आंसर कर रही थी तो बीच बीच में जो बच्चे की दादी थी वो भी बोल रही थी कि तुम ये तो बताना भूल ही गई, वो तो ऐसा भी करता है, वो ये भी करता है, ये सब भी होता है. तो एक बहुत ही अच्छा सा माहौल बना हुआ था. और कभी हम इनको देखते हैं, कभी उनको देखते हैं, तो लेकिन फोकस जो था हमारा वो मदर के आंसर पे ही था. और जहाँ जहाँ उनकी दादी ने कुछ बताया बच्चे की, तो हमने वहाँ उसको पेंसिल से नोट किया कि ये बच्चे की दादी द्वारा बताया गया है.
दीपा ऐसा क्यों किया? Why didn't you just note down the answers? Because you were you were asking about the child, and the interview was supposed to be with only the mother. Why did you enter what the grandmother said? मैम मुझे लगता है हमारी जो फैमिलीज़ हैं, खासकर ये जो रूरल साइड आप देख रहे हैं, वहाँ पर बच्चा जो है सिर्फ अपनी माँ ही नहीं, अपनी दादी या घर में और भी जितने लोग हैं उन सब के साथ मुझे लगता है ज़्यादा टाइम बिताता है। जैसे इस फैमिली का मैं बताऊँ, ये मदर जो है खेत पर चली जाती हैं, सुबह अगर वो 10 बजे खेत पर जा रही है और शाम को 5 बजे आ रही है, बच्चा पूरा टाइम जो अपनी दादी के साथ है या गाँव में साथ वाली किसी दादी के साथ है। तो मेरे ख्याल से वो जो है वो प्राइमरी केयर टेकर हैं बच्चे के, तो ज़्यादा उनके विचार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने माँ के। तो इसीलिए उनके जो भी विचार थे उनको भी हमने जानना ज़रूरी समझा। I think I'll come back to my original point when I said that in order to study children, we need to be open to studying the whole family, because the child is interacting, the child is growing up in a whole family. When we suppose we want to know more about the child's behavior at school, we should be willing to go to talk to the teacher, we should be willing to talk to the child's friends. So when we are studying a child, particularly because a child lives among people, we must use multiple methods so that we can get an accurate picture of the child's development. Of course, it depends upon the topic which we have chosen for study. एक और छोटा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो अभी लास्ट पिक्चर आपने देखी उसमें मैं बता रही थी कि वो दादी जो थी वहाँ पर वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी। इनके अलावा जो आसपास के जो लोग थे, वो हमारे शहरों में क्या होता है, अगर हमारा बच्चा है तो सिर्फ घर तक ही रहेगा, वहाँ पर वो गांव का बच्चा होता है, तो जो भी आसपास के लोग होते हैं उन सबको उस बच्चे के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि अरे ये तो ऐसे भी करता है, ये सारा दिन उन बच्चों के साथ खेलता है, ये ऐसे खेलता है। तो वो एक जो कम्युनिटी वाली फीलिंग थी, हमारा बच्चा, वो बहुत ज़्यादा थी उस वहाँ गाँव में देखने के लिए। तो एक टेक्निक, that means the method of child study also needs to be adapted to the context. As one example, concrete example you gave was that the questionnaire that you used in urban areas had to be changed to be used as an interview with this family because the mother was not literate. So we have to be ready when we are studying. What is our objective? Our objective is to get reliable, correct information about the child. Now when we need, it is like really detective का काम होता है, एक तरीके से रिसर्च का काम या बच्चे को पढ़ने का काम एक डिटेक्टिव की तरह होता है, क्योंकि हमें खोजना है कि ये बात क्यों है, इसका क्या जवाब है। ये जैसे डिटेक्टिव ढूंढता है या पुलिस ढूंढती है कि ये काम किसने किया, ये क्राइम किसने की, और वो हर तरीका यूज़ करते हैं to find out the solution to that question. Similarly, I feel research is also about being curious, about being inquisitive, and about doing everything to get an answer to the question that you have in your research. And because children are so mysterious in many ways and so beautiful, हमारी life में कितना they bring so much joy to our lives, we need to understand children better. Sometimes we fail as adults, we fail to understand कि मेरे बच्चा 4 साल का है and he has started lying, वो झूठ बोलने लग गया, मैं क्या करूं? क्या एक 4 साल के बच्चे की झूठ एक असली झूठ कहलाएगी? Unless we go out and we study children, how will we come to know कि बच्चा शुरू में जब छोटा होता है तो वो झूठ के साथ खेलता है, उसके लिए एक it is a playful activity. The child has just learned how to speak, and then the child realizes the power of saying things that are not correct. उससे छोटे बच्चे को लेंगे तो ये फेमस एग्जाम्पल है कि अगर माँ कह रही है बच्चे को कि आंटी को बोलो कि मम्मी घर पे नहीं है, तो एक बच्चा कहेगा कि मम्मी कह रही है कि मम्मी घर पे नहीं है। तो ये एक बच्चे की जो इनोसेंस है और जो ब्यूटी है, इसको समझना हमारे लिए, फॉर दोज ऑफ अस हु आर इन्वॉल्व्ड विद चिल्ड्रन, whether the child is and here I want to bring up the issue of children who have difficulties, like
चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, अगर कोई किसी वजह से बच्चा देख नहीं पाता है या चल नहीं पाता है या कोई और उसको परेशानी है, वो बीमार रहता है, उस बच्चे का भी तो बचपन है, उसकी खुशी भी हमारे लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है. सो we must not assume that because a child is visually impaired that the child can't do anything. It is our responsibility as adults that when we bring children into this world and when we are trained as responsible professionals to study children, we have to be equally committed to all children, whether they are children of the poor, whether they are children who are in difficult circumstances, whether they are children who have suddenly had a community that has had a natural disaster, like children after the earthquake. Many of my colleagues went to work with children in Gujarat after the riots because ऐसी situations में सबसे ज़्यादा मुश्किल बच्चों को और औरतों को होती है, and it is our responsibility as professionals to be available, to be able to study why and how these situations will affect children and what we can do in order to make children's lives better. Let us move now to the issue of rating scales. Rating scales जो होते हैं ये एक measurement की तरह होते हैं. We sometimes use measurement for studying children. They are based on measuring. जैसे मैंने खीर का example दिया था, हो सकता है that खीर would not be very successful, but measurement is used when we are cooking, for example. चाहे आप मुट्ठी से measure करें, चम्मच से, कटोरी से या एक weighing scale से. In rating scales, what we do, first of all, it is important to know that a person should be literate. That means पढ़ा लिखा होना चाहिए for rating scales to be used successfully. But I think, Deepa, we have used rating scales with people who are not educated also, and I will give you an example of that. इसमें क्या हम करते हैं कि हम एक statement लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक example है आपके सामने. A child should be allowed to be independent from a young age. ये एक question है, or you can say, should a child be allowed to be independent from a young age? Now, options are strongly agree, agree, in between, disagree, strongly disagree. So, what you do is you give a statement to the person whom you are talking to, and then you say, from these options, choose one that reflects your views. ये जो एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कही जाती है और उसके बाद ये ऑप्शंस दी जाती हैं. क्या दीपा, आपने रेटिंग स्केल्स कभी यूज़ किए हैं? जी मैम, हमने रेटिंग स्केल्स यूज़ की हैं मदर्स के साथ ही. जैसे आपका ये एग्जांपल है, क्या बच्चों को बचपन से ही स्वतंत्र होने के लिए परमिशन देनी चाहिए या नहीं? आप इससे सहमत हैं, थोड़ा सहमत हैं, बिल्कुल असहमत हैं या थोड़ा बहुत सहमत करते हैं? इस तरह से जो भी आप ऑप्शंस हैं, इसके अंदर एक ऑप्शन चूज़ करना होता है, हाँ या नहीं. लेकिन मैंने ये देखा है कहीं ना कहीं इसमें कई बार जो है दिक्कत आ जाती है कि उनको लगता है कि हाँ हम सहमत तो हैं लेकिन कभी कभी नहीं होते हैं. तो ये वाली जो बात है ये रेटिंग स्केल्स में कहीं ना कहीं रह जाती है. पर रेटिंग स्केल्स का इस्तेमाल फिर क्यों किया जाता है? बिकॉज दे आर इजी टू एनालाइज. आप जब एक स्केल बनाते हैं तो उसको काउंट करना, उसको टोटल करना बहुत आसान होता है. और जब व्हेन यू हैव मेनी पीपल हुम यू आर स्टडिंग, rating scales become very valuable because at the end of it you can know whether related to this statement of should a child be independent at a very young age, if most people strongly agree with the statement, then we know that this particular community values independence for children. If we find that most people strongly disagree with this statement, we can come to the conclusion that independence for young children is not valued by this group.
कि ये इस ग्रुप में लोग सोचते हैं, बड़े सोचते हैं कि बच्चे का बहुत छोटी उम्र में स्वतंत्र होना कोई ठीक बात नहीं है, कि एक बच्चे को माँ बाप के ही कंट्रोल में रहना चाहिए. सो दिस इज हाउ रेटिंग स्केल्स हेल्प अस इन मेजरमेंट ऑफ people's opinions. जी. We move now to the next example, which is about clinical investigation. थोड़ा बहुत मैंने initially भी बताया था, पर अब और डिटेल में clinical investigation जो हम करते हैं, that is usually very important for diagnosis of individual assessments, problems and difficulties. When a parent or a teacher can also observe when a child starts going to school. A teacher sometimes finds that one child is not able to study math or is not able to study Hindi. कुछ बच्चे के जो होमवर्क में हैं वो डिफ़िकल्टीज आ रही है, वही गलतियां बार बार कर रहा है. तो जो भी एडल्ट है जो बच्चे के साथ इंटरैक्ट करता है, it is possible for any of these adults to locate that this child is in need of clinical investigation. Clinical investigation, the evaluation of clinical investigation is based on developmental norms. Developmental norms are those standards that are created by studying large groups of children. I gave the example of walking earlier. That means we say that the child usually takes the first step around the first birthday. 12 महीने तक बच्चा पहला शब्द और पहली स्टेप ले सकता है. कुछ बच्चे जल्दी करते हैं, कुछ बच्चे उससे देर. नॉर्म एक सजेशन है कि ये सही रेंज है. बट हाउ आर नॉर्म्स ऑब्जर्व्ड? Norms are observed by studying large groups of children. So when we go for clinical investigation, the clinician will evaluate the problem and see whether that problem comes within the normal range or not. So developmental norms, checklists are very useful for a clinician when evaluating a child. Standardized tests can also be used. Learning disability आजकल एक बहुत इशू बन गया है स्कूल्स में. ये आइडेंटिफाई किया गया है कि some children are for some reason not able to do mathematics properly. They are not able to add or subtract according to the expectations for the age. एक 2 साल का बच्चा तो कभी ऐड नहीं कर पाएगा, ये हमें मालूम है. 3 साल का, 4, 5, 6, कौन सी एज ऐसी है जहां बच्चे को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए? ये हमें कैसे इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा? When we find that there is a particular age at which a child can be expected to make simple additions, हमारा जो स्कूल का करिकुलम है ये डेवलपमेंटल नॉर्म्स पर बेस्ड है. कई बार कुछ स्कूलों में बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस कर देते हैं और वो मैं तो उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि बच्चे के ऊपर बहुत स्ट्रेन पड़ जाता है. सो इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो दैट वी कैन यूज़ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स फॉर असेसिंग डिले और डिफ़िकल्टी इन समवन. मैम ये जो टेस्ट हैं इनके साथ 2 शब्द जुड़े होते हैं, जिस रिलायबिलिटी और वैलिडिटी. क्या आप इस पे कुछ रिफ्लेक्ट कर सकते हैं? एक टेस्ट को रिलायबल होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए. इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट टू बी रिलायबल एंड वैलिड. व्हाट डू वी मीन बाय दैट? दीपा, गुड क्वेश्चन. स्टैंडर्डाइजेशन इज़ अ प्रोसीजर. एक टेस्ट को हम स्टैंडर्डाइज तब बोलते हैं जब ये व्हेन इट हैज़ बीन टेस्टेड ऑन अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल. फॉर अ टेस्ट, when a test is standardized on as large as 1000 or 2000 children, we can say it is standardized. This sample on which the standardization is done is called the standardization sample. As a result of this, we can come to the conclusion, or we can rely on the fact that
a test is reliable. Reliable का मतलब ये है कि when we use this test again, that it should also be giving the same results. When we return, we will come back to the issue of validity of standardized tests. For the moment, let us take a break before we start.